Good morning, students. Today we'll start our next chapter, Producers Equilibrium. Okay. Before this, we have discussed about revenue and cost concepts. Okay. So these are the two concepts which are taken as a base to determine the equilibrium or the balance of producer. That means where the producer find himself in the condition or the situation where the producer find himself or herself in a state of balance, okay, or in equilibrium. That means satisfaction, a state of satisfaction, okay. कब producer अपने आप को maximum satisfied feel करेगा, okay. So producers equilibrium means a producer अपने आप को a producer will find himself or herself in the state of equilibrium only when he or she is earning maximum profits, okay, or it is the state of profit maximization, okay. That means हर एक producer अपने business से जो है maximum profit earn करना चाहेगा या अपने profits को maximize करना चाहेगा, okay. That will be the state of satisfaction or equilibrium, okay. So profit maximization is producer's equilibrium, or it is the ultimate goal of the producer to maximize his or her profits, okay. So now, how do we calculate the profits? It is a general consensus that when we deduct the cost or subtract the cost from our revenue, okay, we will get the difference in terms of profit, okay. जब हम अपनी रेवेन्यू से जो हमें बिजनेस से मिला है, ठीक है, जो भी आउटपुट सेल करके हमें जो मिला है, ओके, द अमाउंट ऑफ मनी विच वी हैव received by selling the output, that is called revenue, okay, and cost, the amount of money incurred to produce that output, okay, that is cost, okay. So उस रेवेन्यू जो हमें मिला है उस आउटपुट को बेच के, ठीक है, उस रेवेन्यू में से उसको बनाने में जितना लगा वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट डिफरेंस बचेगा दैट इज प्रॉफिट, ओके, दैट इज कॉल्ड आवर प्रॉफिट, ओके. Here we are denoting the profit with the letter pi, okay. Pi is equals to TR minus TC. Here pi is profit, that means total revenue minus total cost. जो difference आएगा वो हमारा profit होगा, okay. So profit is maximized when the difference between TR and TC is maximum. That means when revenue or total revenue is higher or greater than total cost, okay, or the difference of these two is maximum, only then the profit will be maximum, okay. जब इन दोनों का difference जो है वो maximum होगा तभी हमारा profit maximum होगा, okay. So TR minus TC is equals to profit. That is the general concept. Now we have two types of profits. One is economic profit and the other one is accounting profits, okay. These two profits are taken in the concern of cost, implicit cost and explicit cost. We have discussed in our earlier chapter, previous chapter, that we have two types of cost. One is explicit cost and the other one is implicit cost. Now what are these costs exactly? Explicit cost is the cost which is paid, which is actually paid to someone outside the business, okay. जो producer ने business के बाहर किसी को actually pay की है to hire the services, okay, उसकी services hire करने के लिए जो actually बाहर pay की है, that is explicit cost, okay. And implicit cost which is not actually paid, ठीक है, outside the business, okay, okay, or the cost which does not belong with the services which are outside the business, okay. वो cost जो उन services से belong नहीं करती जो business के बाहर से है, ठीक है, या बाहर से ली गई है, okay, उनसे belong नहीं करती, okay. So this is the cost of the services which are inside the business or which are available inside the business, okay. That means this is not actually paid outside the business, okay, जो business के outside या किसी third party को pay नहीं की गई है, okay. फॉर एग्जाम्पल ओनर का खुद का प्लांट है, ओनर का खुद का लाइक लैंड है या बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसे रेंट पे नहीं लेना पड़ा या रेंट किसी और को नहीं पे करना पड़ा, ओके. दैट इज इम्प्लिसिट कोस्ट. हिडन कोस्ट है, छुपी हुई है, क्योंकि कोस्ट तो है, मार्केट कोस्ट तो उसकी एक्चुअली है. अगर वो उस बिल्डिंग को कहीं दूसरे पे रेंट पे दे देता है, किसी दूसरे को यूज़ करने को दे देता तो उसको रेंट मिलता, या फिर अगर उसके पास वो बिल्डिंग नहीं होती तो उसे रेंट पे लेना पड़ता, ठीक है, तो उस केस में उसको रेंट पे करना पड़ता. सो उस बिल्डिंग की कॉस्ट तो है, मार्केट वैल्यू तो है, ठीक है, हालांकि पॉइंट इज कि उसको पे नहीं किया गया है, ठीक है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो इन इकोनॉमिक्स we use both costs, explicit and implicit cost, okay. Whereas in accounts we use only explicit cost, okay. Only that much amount is
termed as the cost or the expenditure which is actually paid outside the business or which is spent. Okay, हम अकाउंट्स में सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं जो पे किया गया है, एक्चुअली पे किया गया है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स में हम दोनों को, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करेंगे। ओके, सो इन इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये भी टोटल कॉस्ट मानी जाएगी। ओके, इन अकाउंट्स टी आर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी हमारी टोटल कॉस्ट मानी जाएगी। बट डिफरेंस इज कि इस टीसी में, इकोनॉमिक्स में हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों चीज़ इंक्लूड करेंगे कॉस्ट की, बट अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो एक्चुअली पे किया गया है, ठीक है, हम वही इंक्लूड करेंगे। अभी हम यहाँ पे अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों को, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। ओके, now the two concepts of profits, one is gross profit and other one is net profit. Okay, so gross profit is equals to TR minus TVC, total revenue minus total variable cost. Okay, that means हम अपनी रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ देंगे। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रोस प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही यूज़ की जाएंगी। ओके, व्हेन टी, जब हम टी आर में से टी सी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है। ओके, और ग्रोस प्रॉफिट इज टी आर माइनस टी बी सी। दैट मीन्स हम ये देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट में क्या हमारा प्रॉफिट या हमारी रेवेन्यू हमारी वेरिएबल कॉस्ट को एटलीस्ट कवर कर पा रही है। दैट मीन्स whether we are able to cover our variable cost out of the total revenue or not. Okay, in gross profit we used to see whether the revenue is sufficient to cover the variable cost only. Okay, in net profit हम ये देखते हैं क्या टोटल कॉस्ट कवर हो पा रही है, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट क्या दोनों कॉस्ट कवर हो पा रही हैं। ओके, वो हमारे नेट प्रॉफिट है। तो दैट मीन्स जब सारा कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद भी कुछ बच जाता है, दैट मीन्स टी आर माइनस टी सी इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव फिगर बच जाता है, दैट इज नेट प्रॉफिट। ओके, so in net profit we used to consider both the cost, variable as well as fixed cost, but in gross profit we used to see only, or we used to check only the variable, whether the total revenue is able to cover or sufficient enough to cover the variable cost only. Okay, कि इतनी sufficient या adequate है कि वो variable cost को cover कर पाए। Okay, fixed cost हम छोड़ देते हैं। Okay, now there are three components of the profits. One is abnormal profit, normal profit and subnormal profit. Subnormal profits are considered as minimum losses also. Okay, यहाँ पे हम इनको subnormal profits को minimum losses भी कहते हैं। Okay, so abnormal profit, that means huge profits or extra normal profits or super profits भी इनको हम कह सकते हैं। Okay, so huge profit is being earned by the firm or the business. That means when TR is greater than TC, when revenue is greater than total cost. Okay, in that case when TR is greater than TC or AR is greater than AC. Okay, it is also termed, it is also can be taken as when AR is greater, AR is price. Okay, when price is greater than per unit cost. Okay, जब हम एक यूनिट का प्राइस उसकी कॉस्ट से ज़्यादा रख देते हैं, that means we are earning something. Okay, actually, so that is extra normal profits. Okay, so दो कंडीशन है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कब होंगे, जब TR is greater than TC और AR is greater than AC. Okay, next one is normal profit. Normal profit is equals to TR is equals to TC or AR is equals to AC. Okay, that means जब total revenue total cost के equal हो जाएगी या prices जो हमने लिए हैं AR is the price is equals to per unit cost, that is normal profit. Okay, अब ये normal profit में TR is equals to TC है, that means revenue और cost दोनों equal है। ठीक है, तो profit तो नहीं हुआ, फिर भी हमने इसको normal profit माना है। Reason being normal profit is a condition or a situation in which, or it is a situation where the producer expects a minimum amount of return from the business. Okay, normal profit is a situation when a businessman or a producer expects a minimum amount of return from his or her business. That is normal profit. मतलब एक businessman क्या चाहता है कि उसे कम से कम, एटलीस्ट कम से कम कितना रिसिव हो, उससे एटलीस्ट अपनी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, मिनिमम रिटर्न कितनी आए, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, एक बिजनेसमैन या एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि उसे अपने बिजनेस से एटलीस्ट अपनी कॉस्ट कवर हो जाए। मतलब मिनिमम रिटर्न कितनी आए, कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट। ओके, सो व्हेन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, मिनिमम रिटर्न कितनी आए, जो उसने लगाया है वो वापस आ जाए। ओके, मिनिमम रिटर्न ये है उसकी। ओके, अगर मैक्सिमम पे जाएंगे तो अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा कि उसको प्रॉफिट भी हो, कॉस्ट के अलावा ज़्यादा अर्न हो या ज़्यादा रिकवर हो। ओके, नेक्स्ट वन इज subnormal profits or minimum losses. Okay,
Subnormal profit is a situation when TR is less than TC. Okay, in that case TR जो है, that means the business is not earning that much or sufficient or adequate amount so that we are or we can cover the total cost. Okay, the business is not earning this much amount or sufficient or adequate amount so that we can cover our TC even. ओके, इतना भी नहीं अर्न कर पा रहा है बिजनेस, या हम बिजनेस से इतना भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं रेवेन्यू के रूप में कि एटलीस्ट हम कॉस्ट तो कवर कर पाए. ओके, सो व्हेन टीआर इज लेस देन टीसी इट इज अ सिचुएशन ऑफ सबनॉर्मल प्रॉफिट, दैट मीन्स मिनिमम लॉसेस, हमें लॉसेस हो रहे हैं. ओके, एंड एआर इज लेस देन एसी, दैट मीन्स प्राइस हैज बीन फिक्स्ड लेस देन पर यूनिट कॉस्ट. ओके, रीजन बीइंग हम सेल बढ़ाना चाहते होंगे या फिर हम स्टॉक क्लियर करना चाहते होंगे. ओके, सो एटलीस्ट टोटल लॉस से मिनिमम लॉस ही बेटर है कि हमें कुछ तो कवर हो रहा है. ओके, और ये कुछ क्या कवर होगा, हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट का हम यहाँ पे बर्डन बेयर कर रहे होंगे. ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे टीसी लिया है तो टीसी में टीवीसी एंड टीएफसी दोनों इंक्लूडेड है. ठीक है, तो टीसी इज ग्रेटर देन टीआर. ओके, सो जो डिफरेंस है वो एफसी टीएफसी का है. ओके, रेवेन्यू लाइक if TR is 60, okay, and TFC is 20 and TVC is equals to 60, तो TC हो गया 80. okay, so TC is 80 and TR is equals to 60. In that case TR is less than TC. okay, so if we bifurcate the TC into TFC and TVC, TFC है 20 rupees, TVC है 60 rupees. In that case we can see that through our TR we are able to recover or we are able to earn our TVC only. okay, ये जो 60 रुपये TVC के हैं वो तो हम अपने TR से अर्न या रिकवर कर पा रहे हैं, बट जो डिफरेंस है 20 रुपीज़ का TFC दैट इज नॉट रिकवर्ड. ओके, सो हम TFC को फॉरगो कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. ओके, दैट इज द मिनिमम लॉस. ओके, व्हाट इज द कंडीशन, सॉरी व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मिनिमम लॉस, व्हेन द प्रोड्यूसर हैज टू बेयर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, जब उसे फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस बेयर करना पड़े, दैट इज द सिचुएशन ऑफ मिनिमम लॉस. ओके, जब टीसी ज़्यादा है, ऑब्वियसली एफसी और वीसी दोनों इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, तो एफसी कवर नहीं हो रही, वीसी कवर हो रही है. ओके, तो जॉइंटली तो अभी भी कॉस्ट ही ज़्यादा है ना, टीसी ज़्यादा है, रेवेन्यू अभी कम है. बट अगर बाइफरकेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वीसी कवर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो रही. दैट इज द मिनिमम लॉस. ओके, next one is the condition of producer's equilibrium. okay, what are the conditions of producer equilibrium? एक प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है, हम यहाँ पे इन कंडीशंस को पढ़ेंगे. conditions of producer equilibrium through MC and MR approach. okay, MC and MR approach के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे. तो दो कंडीशंस हम लेके चलते हैं MC MR approach में. फर्स्ट इज for a producer to be in equilibrium, MC should be equal to MR. okay, marginal cost should be equal to MR, marginal revenue के equal होनी चाहिए marginal cost. MC is equals to MR and MC should be rising. okay, दो conditions हम यहाँ पे use करेंगे, MC is equals to MR and MC should be rising. okay, so first of all we have a schedule, a table. ठीक है, we'll be having the values of MR and MC in contrast to output. okay, so the units of output 1 2 3 and 11 units are being produced, and here is the MR. okay, we are taking this schedule according to perfect competition where AR is constant. okay, perfect competition में जहाँ पे प्राइस फिक्स होता है. okay, because number of firms are there, so कोई भी प्राइस को अकेली डिसाइड मीन्स अफेक्ट नहीं कर पाती, तो प्राइस फिक्स रहता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं. okay, when AR remains constant, MR also remains constant. okay, so MR is constant in this case. MC fluctuates. okay, initially it decreases or falls and then starts rising, as we have seen that MC is U-shaped. okay, जो marginal cost curve है हमारा वो U-shaped होता है. okay, reason being due to law of variable proportion. okay, law of variable proportion की वजह से हमारा जो marginal cost है या cost curves है हमारे वो U-shaped है. okay, clear, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. so the two conditions, if we apply these two conditions in this schedule, so we can get easily the point where the producer is in equilibrium or state of satisfaction. okay,
So first of all, just compare MR is equals to MC. First condition, we will find out the first condition. Okay, so at 2 units of output, MR is equals to MC. MR is 12 rupees and MC is also 12 rupees. That means first condition is fulfilled here. Okay, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस जब प्रोड्यूसर करता है तो उसका MR और MC एक दूसरे के इक्वल होता है. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, MR is equals to MC. But the second condition will also have to be fulfilled here, okay, along with the first. Okay, so the second condition is MC should be rising at the point where MR is equals to MC. MC should be rising. Okay, वो point जहाँ पे MR और MC इक्वल होते हैं एक दूसरे के, वहाँ पे MC rise होती हुई होनी चाहिए. But here MC is declining or falling like 15. At 1 unit of output, MC was rupees 15. Now at 2 units it is 12, at 3 units it is 10. That means MC is falling. Okay, so second condition is not fulfilled here. Now we will search for the another stage or a point where both the conditions are being fulfilled altogether. So we found out that at 10 units of output, again MR and MC are equal. Okay, MR is also 12 rupees and MC is also rupees 12. Okay, and in this condition, in this stage or at this point, the second condition is also fulfilled, that MC is rising. Okay, MR and MC are both equal and MC is rising. How? Previously or earlier, MC was रुपीज़ 10 एट 9 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. ओके, जब 9 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस की तो 10 रुपये पर यूनिट, सॉरी जो टीसी में जो डिफरेंस था वो 10 रुपये का. दैट मीन्स MC 10 रुपीज़ थी. 10 यूनिट प्रोड्यूस की या 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो हमारा MC हो गया 12 रुपीज़ एंड 11 यूनिट्स पे वो 15. दैट मीन्स 10, 12, 15. MC इज राइजिंग. ओके, सो बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. MR इज इक्वल्स टू MC 12, 12 एंड MC इज राइजिंग. ओके, MC इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जबकि फर्स्ट कंडीशन में हमारी MC जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे 2 to 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, MC वॉज फॉलिंग और डिक्रीजिंग. ओके, तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी. क्लियर? तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं. नाउ अब हम इनको जस्टिफाई करेंगे कि लाइक MR एंड MC इक्वल है, चलो मान लिया, बट वाई MC शुड बी राइजिंग at the point where the producer is in equilibrium. Okay, MC rising या राइज होती हुई क्यों होनी चाहिए जहाँ पे एक प्रोड्यूसर अपने आप को इक्विलिब्रियम में फाइंड करेगा. ओके, here MC is related with the variable cost. Okay, so total variable cost is equals to summation MC. ओके, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज हो नहीं रही है, तो जो मार्जिन है, जो डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा होगा? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रही है. हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं. ओके, TVC इज इक्वल टू समेशन MC. ओके, क्योंकि जो चेंज आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट. वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो इवन 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे भी सेम रहनी है. ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें उससे कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं आ रहा है. किसमें? मार्जिनल कॉस्ट में. ओके, या टोटल कॉस्ट में. मान लो टोटल कॉस्ट में कोई भी चेंज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से नहीं आ रहा है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है. जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हम वेरिएबल फैक्टर्स ही बढ़ाएंगे, फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ा पा रहे हैं शॉर्ट रन में. ओके, सो वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, तो जो कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ रही है वो कौन सी है? वो वेरिएबल कॉस्ट है. ओके, सो टीसी में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, वो चेंज ही मार्जिनल कॉस्ट है. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. ओके, समेशन MC इज इक्वल टू TVC. Clear? So if summation MR, that means TVC, is equals to TR, okay, that means it is a condition where profit is maximum. Clear? क्यों? ये हम नेक्स्ट ग्राफ में कंसिडर करेंगे. See, here are the conditions when output was 2 units, okay, where MR is equals to MC, but MC was falling. Okay, so TR is equals to summation MR. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू समेशन MR. हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएगी जब हम समेशन MR, दैट मीन्स 2 यूनिट्स को बेचने पे हमें जो कितना मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी. ओके, फर्स्ट यूनिट का मार्जिन था 12, सेकंड यूनिट का मार्जिन था 12, तो टोटल रेवेन्यू हमारी हुई 24. TVC इज इक्वल्स टू समेशन MC. अब हम यहाँ पे कॉस्ट देखेंगे. ठीक है,
क्लियर। TVC इज इक्वल टू समेशन MC क्यों किया, TC क्यों नहीं किया, बिकॉज TC में तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं, बट मार्जिनल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, मार्जिन इज द डिफरेंस, मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंस। TC में जो डिफरेंस आ रहा है आउटपुट बढ़ाने की वजह से, TC जो बढ़ रही है या घट रही है वही मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, और वो घटना और बढ़ना किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, इसलिए हमने समेशन MC इज इक्वल टू TVC लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे TVC आएगा, ओके, जब हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर देंगे, ओके। तो पिछली टेबल में हमारे पास फर्स्ट यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो 15 रुपीज़ थी, सेकंड यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो 12 रुपीज़ थी, दैट मीन्स TVC हो गई दोनों यूनिट्स की टोटल मिला के 27 रुपीज़, ओके। So TR is rupees 24 and TVC is 27, okay। TR is 24, रेवेन्यू 24 है और कॉस्ट हमारी 27 है, तो प्रॉफिट निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट तो -3, so that means in this case the producer is not able to earn profits, okay, उसे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही है उसे रेवेन्यू से, क्लियर। इन दैट केस वो मिनिमम लॉसेस नहीं, वो लॉसेस में है। मिनिमम लॉसेस कब होते हैं, जब ये वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती TR, ओके, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का ही बर्डन उसे बेयर करना पड़ता तब मिनिमम लॉसेस होते हैं, बट इस केस में तो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है, ओके। नाउ द सेकंड कंडीशन, एट 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट when MR is equals to MC and MC is rising, again we will calculate TR with the help of MR, summation MR, 10 यूनिट्स की MR को टोटल कर दो, ठीक है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, सेवंथ यूनिट, एट्थ यूनिट, नाइन्थ यूनिट एंड 10th यूनिट, टोटल 10 यूनिट्स की मार्जिनल रेवेन्यू को हमने ऐड कर दिया है एंड इट बिकेम 120 रुपीज़, ओके। सो दिस इज टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स को बेचने पे हमें इतना टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ 120 रुपीज़ का। इसी तरीके से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे by adding the marginal cost of 10 units, okay, summation MC। तो हमारे पास TVC आया 100, दैट मीन्स हमने अर्न किया 120 और लगाया कितना वेरिएबल कॉस्ट के रूप में ₹100, तो हमारा प्रॉफिट पाई इज इक्वल टू TR माइनस TVC ₹20, ओके, 20 रुपीज़ हमने प्रॉफिट अर्न किया बाय सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ओके। So at 10 units of output, this profit ₹20 will be maximum, ठीक है। ना तो हम ₹29 यूनिट्स को सेल करने पे अर्न कर पाएंगे और ना ही 11 यूनिट्स को सेल करने पे कर पाएंगे, ओके। 11 यूनिट्स पे जो प्रॉफिट होगा ये कम हो जाएगा क्योंकि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ओके, एंड ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जबकि रेवेन्यू हमारी फिक्स है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने AR फिक्स या कांस्टेंट लिया है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है। दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, उसकी हाँ, हालांकि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी है, बट हमारी टेबल में हमने वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिखाया है, मार्जिनल कॉस्ट दिखाया है, तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो हम देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, तो 11th यूनिट पे इनका डिफरेंस, रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तो कांस्टेंट है बट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, तो इनका डिफरेंस कम हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट कम आएगा, ओके। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट which could be earned by selling 10 units only, okay। so 10 यूनिट्स पे ही उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब वो 10 यूनिट्स बना के बेच रहा होगा, ना तो 9 यूनिट्स पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि 9 यूनिट्स पे उसकी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 11 यूनिट्स पे हमने देखा है, if output is increased beyond 10 units, pi will reduce, okay। 11 यूनिट्स हम देखेंगे 132 एंड 115, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ जो है यहाँ पे सिर्फ 17 होगा, जो कि मैक्सिमम से कम है, ओके। अगर 9 को हम देखें, ठीक है, तो 9 यूनिट्स पे अगर हम देखते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है, 9 यूनिट्स तक ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 9 यूनिट्स की मार्जिनल रेवेन्यू हम ऐड करेंगे, ठीक है, 108, ओके, 108 आएगी हमारी मार्जिनल रेवेन्यू, हम 108 लिख देंगे 9 यूनिट्स की। हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, 9 यूनिट्स की, वो कितनी आएगी, इन 9 यूनिट्स तक हम ऐड करेंगे, ओके, 15 + 12 + 10 + 9 + 8 + 7 + 8 + 9 + 10, ओके, इनको हम ऐड करेंगे, 15 + 12 27, 37 + 9 46, 54, 61, 69, 78 and 10 88, okay, 108 plus 88, again it is 20, ठीक है, it is also 20, that means profit is maximum but condition is not fulfilled, okay। which condition,
एम आर इज नॉट इज इक्वल्स टू एम सी। ओके, अगर हम 9 यूनिट्स को देखते हैं, 9 यूनिट्स को पे अगर हम 9 यूनिट्स पे अगर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करें, तो इस केस में हमारी कंडीशन फुलफिल, हालांकि प्रॉफिट तो हमारा अभी भी 20 है, लेकिन हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। कौन सी कंडीशन? एम आर तो 12 है और एम सी है 10, तो एम आर इज नॉट इज इक्वल्स टू एम सी, ये कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और 11 यूनिट्स पे जाते हैं, मतलब और ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा अर्न करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है और रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है। ओके, सो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। दैट्स वाई जो 10th यूनिट है उसी पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसीलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके इक्विलिब्रियम में है। ओके, नाउ this is the graph of producer's equilibrium where AR is equals to MR parallel to OX axis, क्योंकि AR constant है। okay, so MR भी constant रहेगी, and MC is U-shaped, means initially it is falling, then it starts rising due to law of variable proportion। okay, जैसे जैसे प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता था? टीपी इनिशियली इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो जैसे जब तक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, और जब प्रोडक्शन फॉल करता है, डिक्रीज होने लग जाता है, तब मार्जिनल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होने लग जाती है। ओके, सो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एम सी इज यू शेप्ड। ओके, एंड इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा? Q2, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। Q2 पे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी भी है एंड एम सी इज राइजिंग। ओके, Q1 पे नहीं है, क्योंकि Q1 पे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी तो है, बट एम सी इज फॉलिंग। ओके, तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। नाउ ग्राफिकली अगर हम देखें, ठीक है, सो एम आर इज इक्वल टू एम सी, ठीक है, दो सिचुएशंस में है, एट Q1 एंड Q2। ओके, अगर हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ देखते हैं जो कि पिछला ग्राफ था, ठीक है, दिस इज ए आर इज इक्वल टू एम आर एंड दिस इज एम सी। ओके, एम सी है, दिस इज Q1, दिस इज Q2। अगर हम इसको रिक्रिएट करते हैं तो ओके, this is L1, this is L2। okay, so at Q1 MR is equals to MC and at Q2 MR is equals to MC। okay, and output is at Q1 output is OL1 and at Q2 output is OL2। okay, but in situation 1 MC is falling, okay, and in situation 2 MC is rising। at point Q2 MC is rising and at point Q1 MC is falling। okay, so दोनों कंडीशन सिर्फ Q2 पे फॉलो हो रही हैं। अब हम इनको जस्टिफाई करेंगे। Q2 is the point where TR minus TC is maximum। Q2 is the point where TR minus TBC, total variable cost, is maximum। okay, Q1 पे ऐसा नहीं है। How? See, TR, if we calculate the TR is the area under MR। MR कर्व क्या है? This is OX axis के पैरेलल है हमारा MR कर्व। okay, so the area under MR curve at point Q2, okay, at point Q1, the TR will be OL1 Q1 P। okay, this is the price line, price and quantity हम दिखा रहे हैं, और OY एक्सिस पे प्राइस है, OX एक्सिस पे क्वांटिटी है। okay, so at situation 1 at Q1 TR कितना है? एरिया अंडर MR कर्व। MR कर्व कितना है यहाँ पे? ये है OX एक्सिस के पैरेलल जो दिख रहा है Q1 तक, PQ1, that is MR in situation 1। okay, so TR कितनी हो जाएगी? OL1 Q1 P, this is TR, OL1 Q1 P, OL1 Q1 P। okay, and TBC is the area under MC। MC के अंडर जो एरिया होगा, ठीक है, सिचुएशन 1 में MC के अंडर जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा? TBC होगा। ओके, सो दिस इज RF, इस पॉइंट को मैं R नाम देता हूँ। सो दिस इज MC कहाँ से है? OL1 Q1 R, OL1 Q1 R। सो रेवेन्यू वॉज OL1 Q1 P, ये एरिया रेवेन्यू था, और कॉस्ट क्या है? ये एरिया तो कॉस्ट में इंक्लूडेड है ही, OL1 Q1 P प्लस ऊपर ट्राइंगल और ऐड हो गया Q1 PR, ये कॉस्ट ज़्यादा आ रही है हमारी। ठीक है, तो कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। रेवेन्यू सिर्फ हमारा ये रेक्टेंगल है, जबकि
कोस्ट हमारा रेक्टेंगल से ऊपर ही ट्राइंगल का एरिया भी ऐड हो गया है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोस्ट है। क्लियर। Q2 पे हम जाते हैं तो Q2 पे हमारी जो रेवेन्यू है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है Q2 पे, दैट इज OL2Q2P, OL2Q2P, ये पूरा रेक्टेंगल, दिस वन OL2Q2P, दैट इज TR। ओके, ये हमारा TR है, MR के अंडर का एरिया। Q2 पे हमारा कोस्ट कर्व क्या है, सॉरी टोटल वेरिएबल कोस्ट कितना है, सो यहाँ पे हमारी मार्जिनल कोस्ट है, दैट इज OL2Q2, दैट इज कोस्ट OL2Q2R, ठीक है, OL2Q2R। क्लियर। यहाँ पे कोस्ट हमारी जा रही है OL2Q2R। क्लियर। लेकिन इसमें ये एरिया इंक्लूड नहीं होता है, ये जो एरिया डैश 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 हम या शेडेड एरिया है, ये एरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये रेवेन्यू है, जबकि कोस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इन दैट केस रेवेन्यू इज दिस मच ग्रेटर, इस एरिया से हमारी रेवेन्यू ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कोस्ट, दैट्स वाई एट Q2 प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे ये एरिया रेवेन्यू का ज़्यादा है, ठीक है, इस ट्राइंगल के एरिया से भी ज़्यादा है ये रेवेन्यू का एरिया, दैट्स वाई revenue is greater than TR is greater than TC, that's why it is called the point of equilibrium. Okay, now what if the producer produces a unit more than the equilibrium, जो कि Q2 था हमारा, ठीक है, एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा, मीन्स L2 से L3 पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। L2 इज द इक्विलिब्रियम यूनिट है, Q2 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था पिछले ग्राफ में। अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो दैट मीन्स L2 से L3 पे शिफ्ट हो गए हैं। व्हाट इफ we shift at L3, that means what if a producer produces a unit more than the equilibrium level, equilibrium level से एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, इन दैट केस अगेन रेवेन्यू और कोस्ट को हम कंपेयर करेंगे। सो रेवेन्यू क्या है, एडिशनल रेवेन्यू कितना आया, एडिशनल रेवेन्यू L2 से L3 पे शिफ्ट होते हुए, ठीक है, रेवेन्यू कर्व क्या है ये, सो रेवेन्यू कितना है L2 L3 T Q2, एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ ये रेक्टेंगल ऐड हुआ है, एडिशनल इक्विलिब्रियम के अलावा, इक्विलिब्रियम के बाद जब हमने प्रोडक्शन किया तो L2 L3 T Q2, ठीक है, T Q2 ये वाला रेक्टेंगल। लेकिन कोस्ट कितना ऐड हुआ, कोस्ट ऐड हुआ LT L3 Q3 Q2, अगेन वही वाला केस आ गया कि एक्स्ट्रा ट्राइंगल, तो ये एक्स्ट्रा ट्राइंगल इसमें ऐड किया, इसका एरिया रेवेन्यू से एक्स्ट्रा ऐड हो गया कोस्ट में। सो अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कोस्ट हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा चली जाएगी, दैट मीन्स TR इज लेस देन TVC। ओके, सो हमारा TR इज लेस देन TVC ज़्यादा है तो लॉस होएगा, ठीक है। तो हम एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बीइंग अ प्रोड्यूसर हमें लॉसेस होंगे। व्हाट इफ यूनिट लेस मीन्स यूनिट इज प्रोड्यूस लेस देन द इक्विलिब्रियम, अगर हम एक यूनिट कम प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, इन दैट केस हम L2 से L1 पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, L2 से L1, अब हम L1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हमारा TR क्या होगा, OL1Q1P, OL1Q1P, ठीक है, दिस इज टोटल रेवेन्यू। बट चेंज कितना आया रेवेन्यू में कि इक्विलिब्रियम के मुकाबले L2 से L1 पे शिफ्ट होने पे चेंज आया है हमारा रेवेन्यू का L2 L1 Q2 Q1। ओके, दिस इज द चेंज L2 L1 Q2 Q1, L2 L1 Q2 Q1, इतना रेवेन्यू कम हो गया है ये रेक्टेंगल का एरिया पूरा। ओके, बट कोस्ट कितनी कम हुई, कोस्ट हमारी कम हुई है L1 L2 Q2 T, कोस्ट सिर्फ इतनी कम हुई है, ये एरिया L1 L2 Q2 T। ओके, ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है T Q1 Q2, T Q1 Q2 ट्राइंगल, ये रेवेन्यू का लॉस है, हमें इतनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू का लॉस हुआ है, जबकि कोस्ट इतनी कम नहीं हुई, कोस्ट सिर्फ L1 L2 Q2 T कम हुई है, जबकि रेवेन्यू ज़्यादा कम हुई है। ओके, सो आवर TR रिड्यूस्ड ग्रेटर देन TVC, हमारा TR ज़्यादा रिड्यूस हुआ है TVC के मुकाबले। सो हमें अभी भी लॉस उठाना पड़ा है कि रेवेन्यू ज़्यादा रिड्यूस हो गई, कोस्ट उतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं। दैट्स वाई हम ना तो इससे कम प्रोड्यूस करने पे सेटिस्फाई होंगे बीइंग अ प्रोड्यूसर, और ना ही एक यूनिट ज़्यादा, ठीक है, Q2 पे ही वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा। क्लियर।
नेक्स्ट वन इज, डू ऑल फर्म्स ऑलवेज मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स? नो, सारी फर्म्स अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इवन इन केस जब फर्म्स लॉसेस में हो रही होती हैं तब भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करती हैं। वो लॉस कौन सा होता है? वो लॉस होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। दैट मीन्स फर्म्स में बेयर द लॉसेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस वो बेयर कर सकती हैं, जो कि हमने मिनिमम लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट में पढ़ा था। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस में भी फर्म्स कंटिन्यू कर सकती हैं अपना प्रोडक्शन। ओके, इन दैट केस TRS either greater than or equal to TVC. Okay, equal to TVC है, that means fixed cost का burden उन्हें bear करना पड़ रहा है। Okay, in that case if TR is equal to TVC only, if TR is equal to TVC only, that is मिनिमम लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। ओके, रेवेन्यू से हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। तो इन दैट केस मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी वो लॉसेस बेयर कर रही है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट का, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कंटिन्यू रख पा रही है। क्लियर? अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होगी तो प्रोडक्शन बंद कर देंगे, ठीक है। एक फर्म तभी कंटिन्यू रखेगी प्रोडक्शन शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में दो कॉस्ट होती है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो शॉर्ट रन में एक फर्म तब तक प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगी जब तक कि वो अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाती है। और यू कैन से अ फर्म और प्रोड्यूसर कैन बेयर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। ओके, जब उसको वेरिएबल कॉस्ट कवर होना बंद हो जाती है, और अ प्रोड्यूसर हैज़ टू बेयर द वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो, हैज़ टू बेयर द लॉस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो। अगर एक प्रोड्यूसर को वेरिएबल कॉस्ट का लॉस भी बेयर करना पड़े तो प्रोडक्शन बंद कर देगा। ओके, अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि जब ए आर और एम आर जो थे कांस्टेंट थे, मीन्स प्राइस कांस्टेंट था तो एम आर भी कांस्टेंट थी। व्हाट इफ द प्राइस इज नॉट कांस्टेंट? ओके, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, दैट मीन्स ए आर कांस्टेंट नहीं होती। ए आर कांस्टेंट नहीं है तो एम आर भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एम आर हमारा डाउनवर्ड स्लॉपिंग होगा और एम सी अगेन यू शेप्ड होगा, कॉस्ट कर्व यू शेप्ड ही होता है, ठीक है। सो एम आर इज डाउनवर्ड स्लॉपिंग, बट कंडीशन सेम फॉलो होगी। MR and MC should be equal and MC should be rising. So दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, Q पे और Q1 पे, अगर हम इसको Q1 मान लें। ओके, so Q1 will be the point of equilibrium because at this point MR is equal to MC and MC is rising. Okay, so ये दो कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो करते हैं प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, so this was all about the producer's equilibrium in the chapter. Okay,